जॉईन झालायस का तू? ठीक आहे. Okay, so it is the inverse process of the Z transformation. So over here, again, I'm going to denote two boxes. From box A to box B, we are applying Z transformation, right? And from box B to box A, we are applying inverse Z transformation. So it is an inverse process. So here in box A, we are having sequence f of k से जो denote कर रहे हैं हम, and after applying Z transformation, I'm going to get this as the f of Z, a region in complex plane. And further, this f of z, which is in box B, I'm applying inverse z transformation to get the function f of k. Right? Okay. Moreover, f of k sequence का हम जब z transform find out कर रहे हैं, it is not a unique function. लेकिन f of z का जब हम inverse transform find out कर रहे हैं, वो unique function होना चाहिए. So this is the notation. Z inverse of capital F of Z is equal to f of k. And there are three methods to find out the inverse Z transformation. One, power series method. Second, partial fraction method. And third, integral inversion method or inversion integral method. So these two patterns we are going to club together to study the inverse Z transformation of some standard functions. Now, if you have observed all of the standard Z transformation, I'll get back to that table. कहाँ पे table? Over here. No, this is the table for properties. Over here, yes. So from your box A, right, we are moving to box B. So in box B, we are having the functions of this type: Z upon Z minus A, Z upon A minus Z, AZ upon 1 minus AZ plus Z upon Z minus A, or this kind of function or this kind of function. So box B में कौन से टाइप के functions है? Rational function in Z, small z, right? Rational function किसे कहते हैं? आपने रैशनल अल्जेब्राइक फंक्शंस पढ़े होंगे, लाइक दिस: एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. So this is called as a rational algebraic function. A sort of polynomial function, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में है. So इसे हम रैशनल अल्जेब्राइक फंक्शन बोलते हैं, राइट? अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, in that case what we do? We use partial fraction. Am I correct? Partial fraction कैसे अप्लाई करते हैं? अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? से दिस इज f of x, कैपिटल f of x अपॉन कैपिटल g of x. तो इसे कैसे लिखते हैं? a अपॉन certain factor, say x minus alpha, plus b upon certain another factor, say x minus beta. करेक्ट? अगर यहां पर x माइनस अल्फा का स्क्वायर हुआ तो कैसे लिखते हैं? a अपॉन x माइनस अल्फा प्लस b अपॉन x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बीटा. इज दैट राइट? ओके, अगर और एक चीज होती है यहाँ पर, अगर ये वाला जो फैक्टर है डिनोमिनेटर वाला, वो रियल फैक्टर्स कंसिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस हाउ वी राइट अप ax प्लस b अपॉन सर्टन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए और ax प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है और जिसका सिंप्लीफिकेशन लीनियर फैक्टर में नहीं हो सकता. पार्शियल फ्रैक्शंस के ये रूल्स आपको पता होंगे. This is your first case. Now what happens if I'm having the condition degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator? So what do we do in this case? Anybody can answer?
I'm waiting. Division. Division. Okay. I thought it's a deviation. You said division. किसका division करते हैं? Suppose you are having this is f of x numerator and g of x denominator. So how we proceed? We divide actually f of x by g of x. And what we find out? The division. And later on, after a few steps, what? The remainder. So how we put down our f of x as? F of x can be written as certain say r of x into g of x, right? Plus r of x आपकी डिवीजन है या फिर मैं रिमाइंडर को r of x लिखती हूँ, इसे लिखते हैं हम p of x. P of x into g of x in plus r of x, right? And then your f of x upon g of x. This rational algebraic function can be written as p of x plus r of x upon g of x. Am I right? And now you can observe here that r of x की डिग्री जो है वो less than g of x होनी चाहिए. Now this is your factor which is in the numerator, so it's kind of polynomial term, right? So ये आपकी polynomial term है, and plus here degree of numerator upon जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री ये न्यूमरेटर की डिग्री से लेस होगी. Now if r of x, degree of r of x is less than degree of g of x, then I can proceed to apply the partial fractions again here. So ये basics है partial fraction का, and same thing we are going to use for this particular unit of inverse Z transformation also, and how to apply that and how to get back our f of k, which is the sequence that we need to understand. So here onwards, partial fractions most probably we will be applying till the end of this unit while dealing with the difference equation also. So let me get back to this particular part once again. So I hope you could remember at least 3 to 4 formulas from this section for a raised to k greater than or equal to 0. Our z transformation is z upon z minus a for mod z greater than mod a. Now, as I'm telling frequently that inverse z transformation is inverse process. So अगर मुझे ये टर्म दी है along with this condition and मुझे पूछा है इसका inverse z transform क्या है. So what will be my answer? It's a raised to power k for k greater than or equal to 0, right? In similar pattern, अगर मुझे ये टर्म दी है along with this condition and I will be asked to find out inverse z transformation, that my answer should be a raised to power k for k less than 0, or instead of this I may be given the term of this type minus z upon z minus a. This is also similar term. So अगर मुझे z upon z minus a for this condition दिया गया है, then in that case ये minus sign हम यहाँ पर adjust कर सकते हैं. So I get this is minus of ak for k less than 0. So अगर आपको सारे z transforms याद है तो उसके inverse z transform भी आप आराम से लिख पाओगे. Am I right? So prepare one chart to remember all the z transform. So inverse z transform का table भी वैसे बनता जाएगा. Right? Okay. So ये 4 to 5 formulas आपको याद रखने हैं. ये भी formulas आप याद रख सकते हो. No issues at all. जब कभी भी मुझे exponential term आती है, which is defined for all of z, इसका inverse z transform surely a raised to power k upon k factorial for k greater than or equal to 0 ही होगा. Alright? Okay. And now, with respect to this particular base, we will proceed to define that power series method and partial fraction method to find out inverse Z transformations. What care we have to take, let us check out first of all, and what prerequisites we will be needed. First thing, steps to find out the inverse Z transformation by any one of this method. What we have to do? Step 1. Write partial fraction for f of z when degree of n is less than degree of d. N stands for numerator, d stands for denominator. So अगर f of z जो है आपका ये
से g of z अपॉन सर्टन h of z के फॉर्म में दिया है. सो इन दैट केस अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से स्ट्रिक्टली लेस है, देन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली. अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएशन है, लाइक दिस, degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator, in that case numerator में अगर कोई z है, suppose this is z in the product of numerator, तो ये z हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे in the division. So what I'm going to find out, f of z upon z का partial fraction हम find out करेंगे, and now that f of z by z can be written as g of z upon h of z, where degree of numerator is less than degree of denominator. So I will be having two options. If this condition holds, straightway apply the partial fraction, or this condition holds, then try to find out the partial fraction of this term. दोनों भी साइड z से डिवाइड करो and find out the partial fraction of the same. Okay? Why so? I'll explain you while solving the problem. Step 2. अगर मुझे condition दी है mod of z less than a, in that case, see, let me explain you one more part once again. We have discussed that geometric progression for this type of terms, and it's the infinite sum. So how we noted the infinite sum? This is first term divided by the ratio, provided that mod of r is strictly less than 1. So this particular condition or geometric progression and its sum is VIMP for inverse Z transformation. क्योंकि हमें recognize क्या करना है हर टाइम ये condition mod of R is strictly less than 1 है या नहीं, right? So whenever I will be given mod of Z is strictly less than mod A, this condition that stands for mod of Z upon A is strictly less than 1. On the contrary, if I will be given mod of z is greater than a, in that case, I have the condition mod of a by z is strictly less than 1. All right. So, if this condition holds good, then according to this particular discussion of geometric progression, for this kind of term, I can revert back this particular sequence. AR square and so on, and by that sequence, by writing down that particular series, I can identify my sequence. So ये चीज हमारे लिए important है कि आपको condition क्या दी गई है and how you are expanding your terms in form of. So ये condition हमारे लिए important है. Suppose mod of z is less than 1, less than a, then obtain the series in the power of z by a. क्योंकि इस केस में mod of z by a 1 से लेस होगा. अगर कंडीशन ये है, in that case obtain the series in the power of a by z. So in this case mod of a by z less than 1 होगा. Alright. अब इसका expansion कैसे find out करेंगे? Again, two very important formulas we have to remember here. 1 upon 1 minus z and 1 upon 1 plus z. अगर minus है तो सारी terms plus, and sequential all powers of z we have to write down. अगर यहाँ पर z की जगह क्या होगा, z upon a होगा, z upon a होगा, तो हमारी टर्म्स क्या होगी 1 plus z by a plus z by a का स्क्वायर plus z by a का क्यूब and so on. So that way we have to write down our sequence series, and by that we will be getting our sequence. हमें जो भी रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दिया है इस टाइप का, यहां से क्या करना है, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके सीरीज लिखनी है, राइट? सो यहां से हम आ जाएंगे यहां पर. वंस यू नोट डाउन द सीरीज एंड देन वी हैव टू गेट अवर एफ ऑफ के. ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये पार्ट लिख के भी रखती हूँ. यू आर गिवन एफ ऑफ जेड से g of z अपॉन h of z. इससे हमें क्या लिखनी है, सीरीज लिखनी है. सीरीज सब्जेक्ट टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम जैसे लिखते हैं वहां से हमें सीक्वेंस हमारा सॉर्ट आउट करना है. गेट सीक्वेंस f of k.
तो ये 3 स्टेप इंक्लूडेड है यहाँ पर. अप्लाई कैसे करना है, वी विल अंडरस्टैंड. एंड अनदर फॉर्मूला इज 1/1 + z ब्रैकेट रेज टू n. तो इसका एक्सपांशन हम बाइनोमियल एक्सपांशन के साथ कर सकते हैं. दिस इज nc0 into 1 raised to n z raised to 0 plus nc1, right, into 1 raised to n minus 1 z raised to power 1 and so on. लेकिन nc1 हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस वे में. For n as the real number other than integer, other than positive integer. So 1 plus minus n times z plus minus n minus 1 upon 2 factorial into z square and so on. Again, all of these condition holds good and are in GP if and only if mod of z is strictly less than 1. Step 3, what we have to do is we have to find out f of k, coefficient of f of k, which we have to find out sequence f of k which is coefficient of z raised to power minus k. f of k किसका coefficient होगा, z raised to power minus k का coefficient होगा, तो वो हमें find out करना है. Why so? I'll get back to the definition once again. Z transformation of any given function f of k, how we noted? By definition, this is summation k is equal to minus infinity to plus infinity f of k z raised to power minus k, right? तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि z raised to power minus k का कोएफिशिएंट f of k है. तो मुझे ये सीरीज में ओपन भी कर दूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, दिस इज f of minus k into z raised to power k plus and so on plus f of minus 1 into z raised to power 1 plus f of 0 z raised to power 0 plus f of 1 z raised to power minus 1 plus and so on plus f of k z raised to power minus k plus and so on. and यहाँ पर भी and so on से साथ हो रही. तो ये पूरी हमारी समेशन है. इस समेशन में f of k एज अ फॉर्मूला किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, z रेज टू माइनस k के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है. सो इस पूरी सीरीज में मुझे किसे ढूंढना है, z रेज टू पावर माइनस k को ढूंढना है. जैसे ही ये मिल जाता है, इसका जो भी कोएफिशिएंट हो अलॉन्ग विथ साइन, ये पूरा हमारा f ऑफ k हो जाएगा. तो हमें सीरीज जब हम लिखते हैं तो वहां से z रेज टू पावर माइनस k का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है. So we'll remember that. So these 3 steps are included. I just repeat. Partial fraction use करने हैं along with these 2 conditions. Expansion use करना है. And after expansion, f of k का z raised to power minus k का coefficient find out करना है. वो है हमारा f of k. So let us solve that problem step by step. मैं 2 problems यहाँ पर fully solve कर रही हूँ for both of the conditions, and then we'll start solving the further problem based on the partial fraction. Now, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इनवर्स z ट्रांसफॉर्मेशन फॉर mod of z लेस देन a एंड mod of z ग्रेटर देन a. दोनों भी कंडीशंस के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई दैट. यहां पर मैं करती हूँ क्वेश्चन 1, इनवर्स z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या था वो 1/z minus c. फर्स्ट कंडीशन, mod of z is less than mod a, and second condition, mod of z is greater than mod a. Let us simplify one by one. Now for first problem we are going to solve. Mod of z is strictly less than mod a. What that implies? Mod of z by a is less than 1. तो मुझे एक्सपांशन जो है वो z by a के फॉर्म में करना है. ठीक है, अब मैं मेरा फंक्शन लिखती हूँ f of z. दिस इज इक्वल टू 1/z minus a. अब इसे मुझे एक्सपांड अगर करना है, द फॉर्मूला इज ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, लेकिन बीच का साइन यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है.
राइट. एंड अगर मुझे ये टर्म्स जीपी में लानी है होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सो मेरी जो पावर्स है एक्सपांशन की वो z अपॉन a के फॉर्म में आनी चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर माइनस ए कॉमन निकालती हूँ, सो दैट इज z अपॉन a टर्म आई एम गोइंग टू गेट. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन a एंड यहाँ पर मैं लिखती हूँ दिस इज 1 माइनस z बाय a. इज दिस स्टेप इज क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And now we are having this particular term in form of 1 upon 1 minus x, जिसका expansion हम लिख सकते हैं. So minus 1 upon a I'll be keeping as it is and इसका expansion लिखते हैं 1 plus z plus z का square plus z का cube plus and so on plus this is z by a bracket raised to k plus and so on. I will be always looking for coefficient of z raised to power k or z raised to power minus k. Right? Now, multiply with this 1 upon a to every term in the bracket. So, minus sign I will be keeping as it is. या फिर minus sign भी अंदर ले क्या? Okay, minus sign भी अंदर ले लेते. So, just erase this. This is minus 1 upon a minus 1 upon a square into z minus 1 upon a cube z square and so on. What will be the general term? Minus 1 upon a raised to power k plus 1 into z raised to power k and so on. Am I correct? Yes, ma'am. ओके. सो यहाँ पर पूरे एक्सपांशन में मुझे z रेज टू पावर माइनस के की टर्म तो नहीं मिल रही है. मिल रही है क्या? नो. सो व्हाट आई विल लुक फॉर नाउ, मुझे यहाँ पर z रेज टू पावर k की टर्म ढूंढनी है. सो व्हाट इज दैट टर्म? z रेज टू पावर k की टर्म ये पूरी टर्म है k प्लस 1th टर्म. सो आई राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ z raised to power k, which is equal to minus 1 upon a raised to power k plus 1 for all k greater than or equal to 0. Shall I write down in this way? For this condition also, you can observe मैंने ये expand किया है. z इक्वल टू, अगर मैंने सी दिस ये आपकी जनरल टर्म है, z इक्वल टू k इक्वल टू 0 पुटअप करो तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म मिल रही है. I'll just mark this here. Substitute k is equal to 1 तो आपको ये टर्म मिल रही है. Substitute k is equal to 2 ये टर्म मिल रही है. k इक्वल टू 3 के लिए ये टर्म मिल रही है एंड सो ऑन ये भी टर्म मिल रही है. सो k आप कहां से कहां तक वैरी कर रहे हो? 0 से लेके इंफिनिटी तक वैरी कर रहे हो ना? Am I correct? So coefficient of z raised to power k जो हमें ये मिला है वो वैलिड है k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के. यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक किसी को डाउट है कुछ? प्लीज आस्क. आई रिपीट द स्टेप्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया. आई हैव गिवन दिस कंडीशन, तो मैंने कंडीशन ऐसे कन्वर्ट कर दी कि वो लेस देन 1 के फॉर्म में आनी चाहिए. तो मुझे ये पता चला यहाँ से कि मुझे एक्सपांशन किसके पावर में करना है? z अपॉन a के पावर में करना है. सो वो एक्सपांशन मैंने कर लिया. द फर्स्ट स्टेप इज दिस वन, दिस इज सेकंड स्टेप, राइट? एंड मैं सेकंड स्टेप एक्सपांशन से डिसाइड कर रही हूँ कि जो आइदर z रेज टू पावर k या z रेज टू पावर माइनस k का k की टर्म मिल रही है उसका जो कोएफिशिएंट हम लिखने वाले हैं वो किसके लिए ट्रू है ये मैं एक्सपांशन के साथ आइडेंटिफाई कर रही हूँ. सो दैट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन. सो हमारा प्रॉब्लम वैसे यहाँ पर खत्म होना चाहिए, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में z रेज टू पावर माइनस k का कोएफिशिएंट नहीं मिला है, z रेज टू पावर k का कोएफिशिएंट मिला है. एंड वी आर लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर माइनस k. सो व्हाट आई कैन डू हियर,
I can replace k by minus k. So this will give me, it's 1 upon a raised to power minus k plus 1, and यहाँ पर minus k less than or equal to 0. k को minus k से replace करते हैं. Am I right? k को माइनस के से रिप्लेस करते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी ऐसी हो जाएगी, राइट? नहीं, के तो इनबिल्ट माइनस हो जाएगा, तो मुझे यहां पर ऐसे नहीं लिखना चाहिए. एक ही मिनट. के को हम माइनस के से रिप्लेस करें तो सारे पॉजिटिव वाले के निगेटिव हो जाएंगे. सो आई मस्ट राइट डाउन दिस इज के लेस देन और इक्वल टू 0 नाउ. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर माइनस के लिखा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा. सो दैट वी डोंट वांट. ये चेंज समझ में आ गया सबको? दिस इज योर स्टेप 3. यहां पर किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क. ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज एंड स्टेप बाय स्टेप जाने वाला पैटर्न है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ द स्टेप, और जहां पर समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आस्क. Therefore, sequence f of k, now I can write down. क्या होगा ये? कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर माइनस k. और क्या मिला है ये वाली टर्म. सीक्वेंस f of k इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर माइनस k, जो कि यहाँ पे मिली है. माइनस में a ऊपर लेती हूँ तो ये k प्लस हो जाएगा, एंड माइनस प्लस 1 जो है वो माइनस 1 में आ जाएगा, एंड फॉर k लेस देन और इक्वल टू 0. सो ये है आपका सीक्वेंस. Am I right? All of you please speak in this matter. अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ फिर से. Shall I repeat? Or everyone understood? Yes, ma'am. Understood, ma'am. Yeah, fine. So 3 स्टेप में हमारा आंसर हमें यहाँ पर मिल गया. नाउ मैं ये भी बता के रखती हूँ, जब भी कभी आपकी कंडीशन ऐसे आएगी, मॉड ऑफ z इज लेस देन मॉड ऑफ a, तब आपको z रेज़ टू पावर k का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करके उसे रिप्लेस करना पड़ेगा. लेकिन जब आपकी कंडीशन ये आएगी तब आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, तब आपको z रेज़ टू पावर माइनस k का कोएफिशिएंट डायरेक्टली मिल जाएगा. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पार्ट b आल्सो. सो ये b वाला पार्ट हम कंसीडर करते हैं. दिस इज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड a. सो दैट इंप्लाइज मॉड ऑफ a बाय z इज लेस देन 1. तो हमें जो पावर्स चाहिए a बाय z एक्सपेंशन में, वो a बाय z की पावर चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन रिजेंबल हो रही है मॉड ऑफ r लेस देन 1 के लिए, जिसके लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख रहे थे. सो हमारी टर्म है 1 अपॉन z माइनस से, जो कि f ऑफ z आपको दे के रखा है. यहां से हम सीक्वेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो इसे मैंने लिख दिया a बाय z के फॉर्म में, तो 1 अपॉन z मैंने बाहर लिया, एंड बची हुई टर्म हो जाएगी 1 माइनस a बाय z. अब ये वाली जो टर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, 1 अपॉन 1 माइनस x वाले. तो एक्सपांड करो इसे. दिस इज 1 sorry, a by z plus a square by z square plus a by z का क्यूब plus and so on plus a by z bracket raised to k plus and so on. इसकी प्रायर टर्म क्या होगी? a by z bracket raised to k minus 1. करेक्ट है? Okay. So now let us multiply with 1 by z to each one of the term. So मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 upon z plus a into 1 upon z square plus a square into 1 upon z cube plus a cube 1 upon z raised to power 4 plus and so on a raised to k minus 1 into 1 upon z raised to power k plus and so on. 1 upon z से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे kth टर्म मिली. ये वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द kth टर्म. ये हमारी k प्लस 1th टर्म है.
ये हमारी केथ टर्म है, ठीक है। ओके, केथ टर्म मींस जहां पर z रेज़ टू पावर k है या z रेज़ टू पावर माइनस k है, वो टर्म। तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर इन जीपी, जहां से मैं z रेज़ टू पावर माइनस k का कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, राइट। सो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है, ये कंडीशन आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन करना एक्सपेंशन में। एंड थर्ड स्टेप है, अब आपको प्लेनली यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर माइनस k आइडेंटिफाई करना है। सो व्हाट इज दैट कोएफिशिएंट, this is a raised to power k minus 1, and is this true for k greater than or equal to 0? Yes, ma'am. k greater than or equal to 0 के लिए ट्रू है क्या? Purnesh, you said yes. I'm asking again. ये ग्रेटर देन k ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ट्रू नहीं है। ट्रान्सफॉर्म मध्ये सॉरी, 1 पाहिजे ना, 1 पाहिजे। हा बना. So if I substitute here k is equal to 1, then only I'll getting 1 upon z term. क्योंकि k अगर 1 पुट अप किया तो a raised to power 0 1 हो जाएगा एंड 1 upon z हो जाएगा, जो मुझे फर्स्ट टर्म यहाँ पर चाहिए। लेकिन अगर मैं k इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट अप करती हूँ तो 1 upon z raised to 0 मीन्स 1 एंड यहाँ पर a raised to power minus 1 मीन्स 1 upon a। 1 upon a की टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो हमारा k जो है वो वैरी होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। एंड हेंस अवर सीक्वेंस f of k for the given Z transform will be a raised to power k minus 1 for k greater than or equal to 1. तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द पावर सीरीज मेथड। यहाँ पर हमने कहीं पर भी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं किया है, वी यूज द पावर सीरीज मेथड फॉर द सेम। ऑलराइट, तो ये है हमारा सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे किसी को डाउट है, आप यहाँ पर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, मेरा कंडीशन क्या था, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड a, तब मुझे z रेज़ टू पावर माइनस k की टर्म डायरेक्टली मिल रही है, रिप्लेसमेंट k को माइनस k रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही फर्स्ट टाइप में मॉड ऑफ z लेस देन a वाली कंडीशन थी, वहां पर मुझे सीरीज लिखने के बाद z रेज़ टू पावर k की टर्म पहले मिल रही है और वहां पर मुझे रिप्लेसमेंट करना है। सो केयरफुली डू दैट। ऑलराइट, ओके, सो आई विल गेट बैक टू दिस पार्ट वंस अगेन। यहाँ पर 1 upon z माइनस a का सिंप्लीफिकेशन देके रखा है, 1 upon z माइनस a फॉर मॉड z ग्रेटर देन a के लिए भी देके रखा है। Another part is again directly for partial fraction, but before that I want you to solve this problem also by the power series method. I'll just erase this. All of you please try it out. एक ही प्रॉब्लम पावर सीरीज का आपको करना है, आप फर्दर सारे प्रॉब्लम्स हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पावर सीरीज मेथड के साथ कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस पावर सीरीज की नहीं ले रही हूँ, बिकॉज दिस इज योर सेल्फ स्टडी बीट, ये सेल्फ स्टडी के साथ कंप्लीट करना है ये वाला बीट। तो इसके लिए मैं नोट्स आपको भेज देती हूँ एंड द रेस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड बाय योर ओन। ओके, सो हमारा प्रॉब्लम है फाइंड z inverse of z upon z minus a for number 1 mod z greater than mod a and number 2 mod z less than mod a. Now carefully look out. इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको फॉर्मूलीज पता है तो आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। क्या है इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म a के लिए? मैं फिर से टेबल की तरफ आती हूँ। या हमारी टर्म क्या है अब, z अपॉन z माइनस a एंड मॉड z ग्रेटर देन मॉड a के लिए। तो आपका ये क्या आना चाहिए, सीक्वेंस क्या आना चाहिए, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म a रेज़ टू पावर k फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एम आई राइट? एग्जैक्टली सेम कंडीशन है ना, z अपॉन z माइनस a फॉर मॉड z ग्रेटर देन मॉड a। तो मुझे क्या मिलना चाहिए सीक्वेंस, यहाँ पर f ऑफ k क्या मिलना चाहिए,
This is a raised to power k for k greater than or equal to 0. एंड सेकंड कंडीशन है, रिवर्स वे में चलते हैं, z अपॉन z माइनस ए फॉर दिस कंडीशन. ये एडिशनल माइनस साइन हम सीक्वेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है. सो z अपॉन z माइनस ए फॉर दिस कंडीशन माय f of k must be minus a raised to power k for k less than 0. So we are claiming that ये हमारे इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म है. एंड नाउ लेट अस प्रूव दैट विद द पावर सीरीज मेथड. ए पार्ट, f ऑफ z क्या दिया है, z अपॉन z माइनस a फॉर mod z ग्रेटर देन mod a. बट दिस आई विल राइट डाउन एज mod ऑफ a बाय z लेस देन 1. तो मुझे मेरे एक्सपांशन की टर्म्स पावर सीरीज के साथ a बाय z के फॉर्म में लिखनी है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दैट z आउटसाइड. सो बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 माइनस a बाय z, द टर्म आई वांट टू एक्सपांड इन द पावर, ये z z कैंसिल हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज लाइक 1 अपॉन 1 माइनस x, राइट. एक्सपांड दिस 1 प्लस a बाय z प्लस a बाय z का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस a बाय z ब्रैकेट रेस टू k प्लस एंड सो ऑन. मैं ऑल द वे z रेस टू पावर k या z रेस टू पावर माइनस k के पावर में इंटरेस्टेड हूँ. सो मैंने यहाँ पर वो जनरल टर्म लिख दी, राइट. नाउ यू कैन राइट डाउन हियर द कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू पावर k और माइनस k. तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, z रेस टू पावर k मिल रहा है या माइनस k मिल रहा है, माइनस k. यस. एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट, a raised to k. a raised to k. Will it be true for k greater than or equal to 0? इस जनरल फॉर्मूला पे पुट अप करके देखो, k इक्वल टू 0 1, k इक्वल टू 1 सेकंड टर्म, k इक्वल टू 2 थर्ड टर्म एंड सो ऑन. सो इज दिस ट्रू? यस मैम. यस. सो सीक्वेंस f ऑफ k मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, a raised to power k for k greater than or equal to 0. our claim was correct. ये क्लेम जो हमारा था वो करेक्ट है. b वाला पार्ट, f ऑफ z हमें देके रखा है z अपॉन z माइनस a, और कंडीशन अब है mod ऑफ z इज लेस देन mod a. तो व्हाट दिस इंप्लाइज, mod ऑफ z बाय a इज लेस देन 1. सो अगर मुझे mod ऑफ z बाय a की टर्म चाहिए तो मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, a और माइनस a, राइट. तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, z अपॉन a माइनस 1. Is that right? Okay, now can I keep aside that minus z upon a? I'm sorry, मैंने माइनस a बाहर निकाला था ना, I must write down this one. एक ही मिनट. So this must be minus 1 minus z by a. माइनस a हमने बाहर निकाला है. Yes. Now that minus z upon a I'll write down aside, and this is like 1 upon 1 minus x once again. इसका expansion है 1 plus z by a plus z by a का square plus and so on plus z by a bracket raised to k plus and so on. Again I'll multiply with this term minus 1 upon a into z प्लस और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a क्यूब इंटू z क्यूब एंड सो ऑन, minus 1 upon a raised to power k into z raised to power k and so on. Am I correct? Yes ma'am. ओके. नाउ यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू पावर क्या मिलेगा, माइनस के मिलेगा या k मिलेगा, k. एंड व्हाट इज इट, a raised to minus k. 1 अपॉन a रेज टू पावर k, या फिर आप जैसे बोल रहे हो माइनस a रेज टू पावर माइनस k.
correct? But this is true for k greater than or equal to 0 or 1 or 2. ये आपका k का जनरल टर्म है, z रेज़ टू पावर k का टर्म है. यहां पर आपको वैल्यूज पुट अप करके रखनी है. सो k इक्वल टू 0 पुट अप कर देते हैं. ये टर्म तो नहीं मिलने वाली है. k इक्वल टू 1 के लिए z आएगा और यहाँ पर -1/a आएगा, तो ये टर्म मिल रही है. k इक्वल टू 2 के लिए सेकंड टर्म मिल रही है. k इक्वल टू 3 के लिए थर्ड टर्म मिल रही है, एंड सो ये जो कोएफिशिएंट है ये कौन सी वैल्यूज ऑफ k के लिए ट्रू है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, राइट? ओके, लेकिन we are not interested in coefficient of z raised to power k. We are interested in coefficient of z raised to power minus k. तो ये हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा a raised to power k, करेक्ट? मैं इसके साथ लिख रही हूं, एंड k विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 और -1. आई एम सॉरी, -1 आ जाएगा यहाँ पर, नॉट 1, -1. दैट मीन्स शैल आई राइट डाउन दिस इज k लेस देन 0. डिस्क्रीट वैल्यूज है ना, तो k लेस देन 0 मीन्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक. गॉट माय पॉइंट? तो आपका सीक्वेंस यहाँ पर क्या मिला? माइनस a raised to power k और k less than 0. And was it our claim? Let us check out. Minus a raised to power k for k less than 0. So that's our claim. And we proved it. So this is your power series method. Got it? Okay. And now we have to proceed for the partial fraction method. Partial fraction में जो problems है वो सिमिलर पैटर्न में हमें पार्शियल फ्रैक्शन से पहले सॉल्व करने हैं, एंड इन सिमिलर पैटर्न फर्दर वी हैव टू प्रोसीड. सो कैसे करना है मैं बताती हूँ. या फाइंड द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of z. 3z² plus 2z upon z² minus 3z plus 2. नाउ दिस इज योर रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन. ये आपका रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन है, लाइक g of z अपॉन h of z. अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है तो हम स्ट्रेट वे पार्शियल फ्रैक्शन को जा सकते हैं, एल्स हम f of z अपॉन z के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो हाउ वी आर डूइंग दैट? f of z इज दिस एक्सप्रेशन, लेकिन इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर से एक z एडिशनली निकल सकता है. सो अगर मैंने z यहाँ पर बाहर निकाला तो ये हो जाएगा z इंटू 3z प्लस 2. एंड ये z हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, या फिर थ्रू आउट द साइड हम z से डिवाइड करते हैं, वन एंड द सेम थिंग. ऑलराइट, तो अगर हमने थ्रू आउट द साइड z से डिवाइड करते हैं तो ये z कैंसिल हो जाएगा, गेटिंग f of z अपॉन z इज इक्वल टू 3z plus 2 upon z minus 2 into z minus 1. And now here degree of numerator is strictly less than degree of denominator, and we can apply partial fraction. So this part is known to you. आप partial fraction find out करो and apply that to get the values of a and b. So a की वैल्यू मुझे कैसे मिलती है? This is 3 plus 2 upon z minus 1 subjected to z equal to 2. That gives you the value of a. It's 8, and 3z plus 2 upon z minus 2 subjected to the value of z equal to 1. So that going to give you minus 5. So for a equal to 8 and b equal to minus 5, your f of z upon z stands for 8 upon z minus 2 plus, or minus I can write down, 5 upon z minus 1. All right? And we have given this condition. Mod of z is less than 2, but it's greater than 1. So can I separate out this condition as mod of z is greater than 1 and mod of z is less than 2. So from here, I have to concentrate on mod of z, mod of 1 by z is strictly less than 1, right? And mod of z by 2 is strictly less than 1.
So I should be getting the powers of 1 by z and powers of z by 2. So same thing is explained over here. Yes, we have to express b1 f of z upon z in powers of 1 by z and z by 2. So 1 by z आपको कहाँ से मिलता है? इस टर्म से मिलेगा. एंड z by 2 कहाँ से मिलेगा? इस टर्म से मिलेगा. सो विल मैनेज अकॉर्डिंगली. ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, सिंप्लीफाइड पार्शियल फ्रैक्शंस. सो यहां से क्या बाहर निकालना पड़ेगा? z by 2 की टर्म चाहिए तो z -2 बाहर निकालना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट आई विल गेटिंग, दिस इज -2 8 अपॉन -2 इंटू 1 माइनस z by 2. एंड यहां पर मुझे बाहर निकालना पड़ेगा 1 by z की टर्म चाहिए ना, या सो मुझे यहां पर बाहर निकालना पड़ेगा z into this is 1 minus 1 by z. All right, and now this is f of z upon z is equal to this one. अब यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा f of z. यहाँ से this is 2 4s are 8 minus 4 into ये multiplied z तो minus 4z मिलेगा. z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर तो ये z कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पर मिलेगा -5 into 1 upon 1 minus 1 by z. अब ये दोनों भी टर्म्स जो है ना, मैं इसे स्टार मार्क करती हूँ एंड इसे डबल स्टार. ये टर्म्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कैटेगरी की है तो इसे एक्सपांड तो हम इजीली कर सकते हैं. -4z एज इट इज एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म, इस टर्म का एक्सपांशन 1 प्लस z by 2 प्लस z by 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस z by 2 ब्रैकेट रेस्ट टू k एंड सो ऑन -5 इनटू 1 प्लस 1 by z प्लस 1 by z स्क्वायर प्लस 1 by z क्यूब एंड सो ऑन 1 अपॉन z रेस्ट फॉर k एंड सो ऑन. अब हर एक अलग टर्म के लिए दो ब्रैकेट के लिए मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. -4z से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म आ जाती है एंड -5 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये सीरीज आ जाती है. अब मुझे करना क्या है, हर एक सीरीज में कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है z रेज़ टू पावर k का या z रेज़ टू पावर -k का. तो ऑब्जर्व केयरफुली बोथ ऑफ द सीरीज. इस सीरीज से मुझे z रेज़ टू पावर k का कोएफिशिएंट मिल रहा है एंड इस सीरीज से मुझे कोएफिशिएंट मिल रहा है z रेज़ टू पावर -k का. आइडेंटिफाई दैट. So for first term, coefficient of z raised to power k is -4 upon 2 raised to power k minus 1 for k greater than 0. अब ये कंडीशन अप्लाई कैसे की है? k greater than 0 means 1 से स्टार्ट हो रहा है. अगर z equal to 1 पुट अप किया मैंने यहाँ पर तो मिलता है -4 एंड यहाँ पर 0 -4z 1 के लिए, k equal to 2 के, k equal to 0 पुट अप किया तो मुझे टर्म ही नहीं मिल रही है. सो फर्स्ट टर्म मिल ही नहीं रही है k equal to 0 के लिए. सो k ग्रेटर देन 0 के लिए मींस k इक्वल टू 1 से ये सारी टर्म्स स्टार्ट हो गई है, राइट? सो दैट्स व्हाई कंडीशन कंसीडर्ड एट k ग्रेटर देन 0. सब्स्टिट्यूट k इज -k. सो मुझे मिलता है z रेज़ टू पावर -k का कोएफिशिएंट -4 एज इट इज, k की जगह -k पुट अप करो एंड यहाँ पर k आ जाएगा लेस देन 0. सो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो मिला इस वे में. सेकंड टर्म के लिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर माइनस के आराम से मिल रहा है. इट्स -5. सो लेट अस पुट अप दैट ओवर हियर. इट्स -5 फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए लेट अस पुट अप हियर k इक्वल टू 0 के लिए ये z रेज़ टू 0 मींस 1. यहाँ पर मिलता है -5 फर्स्ट टर्म मिल रही है, k इक्वल टू 1 के लिए सेकंड टर्म मिल रही है, k इक्वल टू 2 के लिए थर्ड टर्म मिल रही है एंड सो ऑन. तो सेकंड टर्म के लिए हमारी वैल्यूज k की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर आ रही है प्रॉपर्ली. सो नाउ बोथ ऑफ द f of k is we determine for first term, for second term. Add that. So this is -8 into 2 raised to power k, but for k greater less than 0, and plus -5 for k greater than or equal to 0. So ये है आपका f of k. By applying partial fraction as well as power series method. All right. Okay. So that's it for today from the inverse Z transformation. Yet few more problems we have to explore from the power series method and partial fractions, and then we'll go for the next method, which is integral inversion method. Okay. So we will stop for now for this particular part.
And let me take your attendance so that B1 and B2 batch can leave, and we will be continuing with the B3 and B4 batch. Hold on a minute. Let me take your attendance. Yes. Roll number 1, 2, 3, 4 absent. 5, 6 absent. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 248 absent. 9, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57 absent. 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 71, 72. Absent number are 4, 6, 48 and 57. Yeah, okay. Fine. So thank you all of you for joining. Let's stop over here for B1 and B2 batch. You can leave. And B3 and B4 batch will just start within 2 minutes. Thank you, ma'am. Yes, thank you everyone.